السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو دھوبی کی کرامات کے حوالے سے جو کچھ علماء کرام بات کرتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں کہ جب قبر میں سوالات ہوئے اس دھوبی سے، تو اس نے تینوں کا جواب میں یہ کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں دھوبی ہوں، تو اس لیے فرشتوں نے اس کو نجات دے دی۔ مطلب قبر کے معاملات تو جو ہے غیبی معاملات تو انسان کو نہیں پتہ ہوتے، تو کس طرح یہ واقعہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح کے معاملات۔ دوسری بات یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 سوالات ہوں گے، اور تینوں کے جوابات وہی دے پائے گا جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتا ہوگا، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہوگا، وہی وہ 3 سوالوں کے جواب دے پائے گا اور وہ آگے اپنا سلسلہ شروع کر پائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی ہے، تو وہ صرف یہی بتائے گا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی ہوں، تینوں میں یہی جواب دے گا اور اس کو نجات مل جائے گی اور اس کی جو ہے بخشش ہو جائے گی۔ اس طرح کے معاملات یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے وہی علماء کرام سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب سے ان کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کے امام، اس کا نام اشرف علی تھانوی صاحب ہے۔ وہ اپنی کتاب فرات یومیہ کے اندر 3 مقامات کے اوپر لکھا، میرے غوث الثقلین کا ایک دھوبی تھا، جب وہ مر گیا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے آ کر سوال کیا مر ربو کا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ارے کہا نا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں کن کا تقول بھی اتحاد الرجل، کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں، گناہگار آدمی۔ حضور غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے، دھو دیتا تھا۔ حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں، اتنی بات قبول ہو، بخش دو نہیں تو سزا دے دو۔ فرشتے حیران، یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا، جو سوال کرتے گئے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا؟ اب تک 2 ہی بندوں سے واسطہ پڑا، ایک وہابی اور ایک سنی۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو؟ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ رب کی بارگاہ سے حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا، ہمارے محبوب غوث اعظم کو تو جانتا ہے۔ حکم ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میرے عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہے۔ اس دھوبی کی بخشش ہو گئی، دھوبی کی بخشش ہو گئی۔ اس پر تھانوی صاحب لکھتے فرماتے کہ اس کی بخشش ہو گئی، اور کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دھوبی کا بار بار یہ کہنا کہ غوث پاک کا دھوبی ہوں اس کی نسبت کے کبھی ہونے کی دلیل تھا۔ لیکن یہ دوستو آپ نے موقف آپ کے سامنے رکھ دیا سارے علماء کرام کا، وہ اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے رکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس دھوبی کی قبر میں آ گئے، کہا میرے مرید کو کیوں تنگ کرتے ہو، جو بھی سوالات کرنے ہیں مجھ سے کرو، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پوچھنا، بس وہ پھر عبد القادر جانے اور اللہ جانے اس کے معاملات، تو یہ بول کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملات آپ کے سامنے علماء کرام نے پیش کر دیے۔ تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ کے بعد پتہ چلے گا، جو مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا، اوہ یہ کیا ہوا، تو یہی کچھ ہی ہونا ہے۔ کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ یار کسی نے کہنا یار میں ہر مہینے 11ویں دن تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ جس نے اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دھوبی تھا، اس سے جب سوال پوچھا مر ربو کا، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پوچھا ماں دینوں کا، انہوں نے کہا میں دھوبی ہوں۔ تیسرا انہوں نے کہا میں دھوبی ہوں، تو وہ فرشتے انہوں مان لگے، اللہ نے کہا چھاڑ دو، انہیں کہہ دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے۔ بھئی یہ جواب قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا، چھٹے چھوٹے نہیں، سب جھوٹ کھڑے ہوئے اللہ دے بندے۔ یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اللہ دے بندے، کسی بڑے تے بڑے امام نو بھی قبر کسی نے کھنگن نہیں دینا، ادھر تے حالت ہی کوئی نہیں ہونی، ٹھیک ہے، کہ کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا،
सब कुछ झूठ है। कब्र के 4 सवालात मेरे यूट्यूब पे क्लिप है, आप देख लें, उसमें मैंने पूरा खोल दिया कि फासिक व फाजिर के साथ क्या होना है, और कब्र के 3 नहीं 4 सवाल हैं। चौथा सवाल ही सबसे अहम है कि तूने खुद पढ़ के अमल करने की कोशिश क्यों नहीं की। और उसके बाद फिर एक गुर्ज लगेगा, और वो गुर्ज ऐसा होगा कि जिन्नों इसके अलावा तमाम मखलूकात उसकी आवाज भी सुनेगी। ठीक है, लग पता जाएगा, पता नहीं लगेगा, लग पता जाएगा। अब लोगों ने बस ठीक है वो कुछ भी नहीं होना जी, वो तो हम तो बस निस्बतें काम आएंगी, तो ये हवाइयां उड़ जाएंगी मरने के बाद, पता चल जाएगा कि जनाब ये, वो कहता जी पता लग जाएगा कि जाके आगे जाके पता नहीं लगना, तो लग पता जाना है। ठीक है, लेकिन उस वक्त एक बंदे को मरने के बाद पता चला कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल था। अब वो कि या अल्लाह मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा अपने आप की इस्लाह कर लूं। नहीं, मेरा भी मसला 196 भी रिकॉर्ड हुआ इसी के ऊपर। उसका उन्वान है काश मैं दुनिया में वापस जा सकता। सूरह सजदा की मैंने आयत नंबर 12 से 22 तक 11 आयात में रिक्कत अंगेज फिक्र आखिरत के ऊपर लेक्चर है, और मैंने काफी सारी चीजें इस हवाले से डिस्कस की हैं। बिल्कुल सही। तो दोस्तों आपने इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने बिल्कुल क्लियर आपको अथेंटिफिकेशन बता दी कि कुरान और हदीस की रोशनी में कोई भी ऐसे मामला नहीं है कि आप किसी की भी पीरी मुरीदी कर रहे हैं तो वो आपकी निजात का सबब बन सकता है, तो इस तरह के मामलत है ही नहीं। चलें आगे चलते हैं, इलियास कादरी साहब वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीद बल्कि उनके मुरीदों का 7 पुश्त तक हर एक मामले का जिम्मेदार हूँ, और अगर मेरे मुरीद का सित्र मशरिक में खुल जाए और मैं मगरिब में हूँ तो मैं उसको छुपाने वाला हूँ। अभी वो एक दावत इस्लामी वालों ने किताब छापी है करामात गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उसमें लिखा है कि एक मुरीद था, तो वो उसने ना उनकी वो जो लोटा था ना उसकी टूटी किबला रुखनी रखी हुई थी, तो को कितने पहुंचते थे तो वुजू करवा के उसने लोटा ऐसे ही रख देता, बेचारे को मतलब गलती होगी, उन्हें जनाब एक निगाह मारी तो मुरीद जलाल किताब न लाते हुए जहां बहाक हो गया। ये लिखा हुआ है अच्छा, तो ये उसी से लिया ना, बड़ी किताब है बहिजतुल असरार। अच्छा, बहिजतुल असरार जो है ना एक एनसाइक्लोपीडिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात का, उसी से ये नकल किया हुआ है। अच्छा, कहते हैं जनाब फिर उन्होंने एक निगाह लोटे की तरफ मारी, उसकी टूटी सी, मैं यार पहले ही लोटे थे मार देते मसले हाल बंदा बच जाता। ठीक है, झूठ है, यानी ये हम मजाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं उड़ा रहे, उनकी तरफ झूठ मंसूब। बिल्कुल इसी तरह उनकी तरफ इन्होंने झूठ मंसूब किया कि उन्होंने कहा मैं मशरिक में हूँ, ये बहिजतुल असरार में लिखा है, मैं मशरिक में हूँ और मेरा मुरीद मगरिब में हो, उसका सितर खुल जाए तो मैं उसका सितर ढांप दूंगा। मजीद मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ और इसका पर्दा खुले मैं ढांक दूंगा। तो मैंने इस पे इनको कहा था कि यार अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है जी आप कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम के ऊपर, आप अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मैं सुच्चा कादरी हाँ, सुच्चा कादरी होएगा जो पार्टी मीडिया के कैमरे सामने लवाए और फिर कहे जी या शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नाल ही अपनी तहमत खोल दे, तो वो आगे। वैसे मेरा मशवरा ये करने से पहले आप अंडरवेयर पहन लीजिएगा, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आप जो है आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। जब हम ये मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हैं बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम बुजुर्गों का नहीं उड़ा रहे हैं, बुजुर्गों का मजाक आपने उड़वाया है। हम नहीं कहते कि उन्होंने ये बातें कही हैं। कसीदा गौसिया में इतने इतने कुफरियात लिखे हुए हैं, इतने इतने शिरकिया बातें लिखी हुई हैं, उनका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और जो जो उन्होंने मुतकब्बराना दावे किए हुए हैं, यानी कोई शख्स इस तरह का दावा कर सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। जो बंदा अल्लाह का नेक बंदा है वो तो डरता डरता ही रहता है। वो ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दावा नहीं किया कि तमाम साहबा की गर्दन पे मेरा पाँव है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया ना। इस तरह के ये सारे दावे झूठे उनकी तरफ मंसूब है, उन्होंने ये बातें नहीं की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जो सही बात है वो मुझे पता है, मैं आपको बता देता हूँ। उनको किसी ने बताया कि जी ईद का चांद नजर आ गया, उन्होंने कहा कि अब्दुल कादिर की ईद का दिन तो वो होगा जिस दिन वो अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाए। ये बात एक शरीफुल नफ्स आदमी कर सकता है। जो शख्स ये बात कर रहा है वो ये कैसे कह सकता है कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ ले जाऊं।
मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद बन जाइए। शहनशाह विलायत मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते क़यामत के रोज़ मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिल जन्नत ना करवा लो। आपका बाबा ये कह रहा हो कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीदीन को ना ले जाऊं, तो आप कहते हैं सुबहान अल्लाह। आप देखें ये कितना बड़ा तकब्बुर है कि कोई शख्स ये दावा करे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ और कई बुजुर्गों की तरफ इन्होंने मंसूब किया, बुजुर्गों को कुछ नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं खुदा न खास्ता अगर उन्होंने ये दावे किए तो अपनी बुजुर्गी की खैर मना ले। ये दावा तो अल्लाह के नबी ने नहीं कभी किया। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मेरी बेटी फातिमा मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तुझे छुड़वा नहीं सकूंगा। हालांकि जनती औरतों की सरदार है, सही बुखारी में है, मुस्लिम में भी। उनको सेंटर्ड करके हमें बताई गई ये बात। अब ये जो बुजुर्ग कहते हैं हमारे सिलसिले में बैत हो जन्नत में ले जाएंगे, जन्नत, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ तो ये मंसूब है कि जी उनका ये दावा है कि जो हमारे कादरी सिलसिले में बैत होगा तो वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक मौत के वक्त वो कलमा ना पढ़ ले। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मेरा मुरीद बगैर तौबा किए दुनिया से रुखसत नहीं होगा। कितनी अजीम खुशखबरी। ये नबी इस्लाम ने तो कहीं दावा नहीं किया, हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली ने तो कहीं दावा नहीं किया, उनसे बढ़ के कौन था। बिल्कुल सही। तो ये बुजुर्गों के साथ, और इसके ऊपर कहते हैं सुभान अल्लाह। देखा कितने पहुंचे बुजुर्ग है। ये तकब्बुर नहीं है, ये असल तकब्बुर है। कोई शख्स इंक्लूडिंग शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी आखिरत के बारे में वसूख से नहीं कह सकते कि मेरे साथ क्या बनना है। बिल्कुल सही। सवाए अल्लाह की वही से जो अल्लाह ने नबी के ऊपर भेजी या उनके जरिए सहाबा और अहले बैत को खुशखबरियां दी। बाकी तो हमारी असेसमेंट ही है ना सिर्फ किसी के बारे में कि अल्लाह ताला उनके साथ ऐसा मामला करेगा। वसूख से तो आप नहीं कह सकते। कि सही बुखारी में हदीस है, हदीस कुदसी, कि नबी इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, जो मेरी चादर खींचेगा मैं उसे जरूर आग में दाखिल करूंगा। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ जन्नत में नहीं जाएगा। तो दीन शोबदेबाजी का नाम, एक जो हमारे मुल्क में अल्लाह रसूल का इतना तारुफ नहीं है जितना वलियों का तारुफ है। वलियों का तारुफ करना, उनकी ज़िंदगी पढ़ना हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हम हिंदी मुआशरे से मुतासर हैं। हमने वलियों को भी अल्लाह के करीब पहुँचा दिया और झूठी सच्चा जो कुछ चाहा लिख दिया। इस उम्मत ने दीन को बचाया है सनद के साथ। ये थोड़ा है कि जो मर्जी लिखा हुआ आमीन। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह पीराने पीर हैं, उसमें कोई दूसरी राय है ही कि वो विलायत के मकाम में सबसे ऊपर है। अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है, लेकिन उनके बारे में झूठी बात है। सलाम फेरते थे, जब इधर मुंह करते थे तो इधर वाले उलमा बन जाते थे, और इधर मुंह फेरते थे तो इधर वाले हाफिज बन जाते थे, और वो अनपढ़ कहते हैं सुभान अल्लाह। अरे भाई ऐसा नहीं, मेरे नबी से बड़ी नजर है जिलानी की। कुतुब सुबहानी, पीराने पीर, जितने टाइटल दो थोड़े हैं, लेकिन मेरे नबी के सामने तो वो एक तिनके की हैसियत नहीं रखते हैं। सारी विलायत तो बहुत छोटी चीज़ है। सारे अंबिया इकट्ठे हो जाएं तो मेरे नबी के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। तो मेरे नबी सलाम फेर दे तो आलिम बना देते, इधर सलाम फेर दे तो हाफिज बना देते। आपने तो किया नहीं तो ये पीराने पीर कैसे कर दिया? ये इस किस्म के झूठे किस्सों ने वो दीन का हुलिया बिगाड़ दिया, दीन की शक्ल बिगाड़ दी। दोस्तों सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया, और तारिक जमील साहब ने भी आपके सामने बता दिया कि इस तरह की किस्से कहानियों ने पूरे दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। और इस तरह के उलमा कराम जो ये बिना सनद के बातें जो आपके सामने रखते हैं, और कुछ लोग जो जैसे तारिक जमील साहब ने कहा कि अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग होते हैं, बैठे हुए वो सुभान अल्लाह के नारे लगा रहे होते हैं, तो इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में जो दलाइल मौजूद हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये धोबी की करामात जो थी वो इस तरह के मामलात कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सबके जारे में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू
सबका तो हो रहनुमा